All right, let's start this session. Very good evening, all of you. Just give me starting 10 minutes. Let me, discuss to you about how I have planned the 14 days active recall sessions for all of you and the new student who may join you in those session. And if you have any query during about these classes, you may also ask. Let me, first start briefing you all. I'm sharing my screen. My screen is visible to all of you. Perfect, na? All right. ठीक है. Now, this is our May 25 active recall batch, which starts from 12th of April. Duration is 3 hours. Your batch is going to be the morning one, 10 बजे से 1 बजे तक. I have given the first priority to your batch. After that, there will be purely English batch for CA inter audit only from 1 o'clock to 3 o'clock. And after that, in the evening from 5 p.m. to 9 p.m., I am going to have the CA final class. ठीक है. So, what is the method that I personally love about studying is like I like I highly talk about it, and there are two things which I prefer to do a lot, whether it is my practical subject or whether it is my inter subject. I want to inculcate that habits into you as well, so that you don't repeat certain mistakes while you are preparing your CA final examination after this level. ठीक है. So 14 days में हम क्या करने वाले हैं? There are going to be 14 active recall sessions. ठीक है. मैंने ऑलरेडी डे वाइज प्लानर आपको दिया है. देयर आर गोइंग टू बी 14 एक्टिव रिकॉल सेशन. एक्टिव रिकॉल सेशंस क्या है? 3 hours daily. For 3 hours we are going to cover your concepts. We are going to cover your FAQs, frequently asked questions from your previous examination, and probable questions. ठीक है. Instead of writing this time and creating a lot of material, because we already have the material, we already have a good amount of question and answers with us, we already have concept book with us, all of you have, right? You all have. So abhi, this is not the time where you have to create material. A lot of students make this mistake. आखिरी महीने में वो material creation का काम करते हैं. क्या करते हैं? नया नया नोटबुक बनाएंगे, नया नया जगह लिखना चालू करते हैं. नहीं, अभी मटेरियल कंसोलिडेट करो, उस पे ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, उस पे ही मल्टीपल टाइम लिखना है, उसको ही देख करके बार बार रिकॉल करना है. कंसेप्ट लर्निंग एंड रिकॉलिंग पे फोकस करना रादर देन क्रिएटिंग मटेरियल. क्रिएशन ऑफ मटेरियल का काम तब होता है जब आप रेगुलर क्लासेस वगैरह कर रहे होते हो. वंस यू आर डन विद दैट, देन यू कम इनटू दिस पिक्चर जहां पर आपको फ्रीक्वेंटली रिकॉल करना है कंसेप्ट को. ठीक है. ये 14 डेज के सेशंस में मैं लाइक आई गो टू द डिटेल्स ऑफ इट. मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि एक चीज याद रखना. अनलेस एंड अनटिल फॉर एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट, अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड कि आपका ऑब्जर्व किसी नॉलेज को या किसी भी कंसेप्ट को रिकॉल करने का पावर स्ट्रांग है, यू वोंट फील कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर राइटिंग आंसर. और ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि समटाइम जब आप बहुत ज्यादा नॉलेज कंज्यूम कर लेते हो, लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट हमने बैंक ऑडिट का अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे या 3 घंटे का सेशन लिया. ठीक है. अब वो 2.5 घंटे के सेशन में यार बहुत सारा कंसेप्ट हमने कवर किया, स्टार्टिंग विद द लीगल फ्रेमवर्क, हाउ टू कंडक्ट ऑडिट, कंडक्टिंग एन ऑडिट के ईच एंड एवरी स्टेप. Now, like how fair is it going to be if without giving you a chance to revise, I'll just ask Vikas ki Vikas, can you please tell me what are the steps in conducting a bank audit? You will give a very, लेकिन नो ऐसा broken distorted answers दोगे आप मुझे, क्योंकि आपको बहुत थोड़ा थोड़ा कुछ याद रहेगा. और वो जो थोड़ा याद रहेगा वो पता है कहाँ से याद है? जो अभी तक आपने लाइफ में ऑडिट के बारे में जो भी नॉलेज एक्यूमुलेट किया होगा ना, आप उसको जोड़ करके कुछ तो आंसर देने की कोशिश करोगे. सेम थिंग हैपेंस विथ स्टूडेंट्स इन द फाइनल एग्जाम. जब आप कोई कंसेप्ट ऑलरेडी रिकॉल नहीं करके जाते हो, मेमोराइज नहीं करके जाते हो अलोंग विद अंडरस्टैंडिंग, आप वहां पर अपनी जिंदगी भर का जो भी नॉलेज है ना उस सबको इकट्ठा करके एक आंसर बनाने की कोशिश करते हो, और आपको लगता है कि मैंने 95 मार्क्स का लिख कर आ गया. यू माइट फील दिस इन द एग्जाम. आई एम गोइंग टू प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग दैट, बिकॉज ये मेरे साथ बहुत ज्यादा होता था और मुझे लगता था कि यार मैं तो सब लिख कर आया है. ठीक है. सो
लेट्स फोकस मोर ऑन रिकॉल इन दिस 14 days, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, जो भी हम पढ़ने वाले हैं। एंड सबसे अच्छी चीज मैंने पता है क्या की है आपके ही बैच में ना, रादर देन पुटिंग लाइक वन मैराथन, वन सिंगल मैराथन इन 1.5 days, मैंने ऑलरेडी 2 मैराथन्स प्लान करके रखे। सो ये जो स्पेस्ड रिपीटिशन है ना, ये टू स्पेस्ड, अगर आप प्लानर देखोगे, आई विल शो यू द प्लानर इन अ वाइल, बट अगर आप ये रिपीट प्लानर आपने नोटिस किया होगा ना, तो आफ्टर कवरिंग अ गुड अमाउंट ऑफ 40 to 50 marks का सेशन, आई हैव प्लान्ड अ रिपीटेशन, स्पेस्ड रिपीटेशन सेशन फॉर यू। अच्छा, ये वर्ड्स बहुत फैंसी लग सकते हैं आपको, अगर आपने लाइक फॉर एग्जांपल एस थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा या इन जनरल, बट मेरा सिंपल सा क्या कहने का मतलब है कि लाइफ में ना गो बैक टू बेसिक्स। जिस तरह से अपन स्कूल में पढ़ते थे ना कि वंस यू रीड द कंसेप्ट आफ्टर अ व्हाइल यू विल अटेम्प्ट अ यूनिट टेस्ट, उसके बाद में हाफ ईयरली एग्जाम देते हो, फाइनल एग्जाम देते हो, ये स्पेस्ड रिपीटेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विथ टाइम योर चांसेस ऑफ फॉरगेटिंग वट एवर कंसेप्ट यू हैव स्टडीड इज वेरी वेरी हाई, और आपका रिटेंशन कुछ इतू सा होता है, like you will retain like 5%, 10%, 50% of the knowledge. So हमने क्या प्लान किया है कि एटलीस्ट टू स्पेस्ड रिपीटेशन से आफ्टर योर इनिशियल 3 hours क्लास जो 14 days में होगा, हम कम से कम 2 बार सेम कंसेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। एंड बिकॉज हमने क्या किया है इस बार, हमने प्लान किया है कि आपको थोड़े थोड़े दिनों में मैराथन्स करवाएंगे, ये बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिंग इफेक्ट, इस लेवल तक जाते जाते ना आपका रिटेंशन पावर इज गोइंग टू बी, मतलब दिस इज समथिंग आई कैन प्रॉमिस, एटलीस्ट आप 70 to 80% एक्यूरेसी के साथ में आंसर कर पाओगे। ठीक है, ये कब मैं बोल रही हूँ, ये 14 days के प्लान में ही इंक्लूडेड है। देन कम्स 1.5 days का रिवीजन। ठीक है, 1.5 days का रिवीजन, आप आपका कॉस्टिंग का पेपर करके आओगे, उसके साथ में कॉस्टिंग का पेपर करने के बाद में आई विल टेक अनदर 9 to 10 hours का फुल मैराथन। अभी लाइफ विल बी इजियर फॉर यू, क्यों? क्योंकि आपने 2 स्पेस्ड रिपीटेशन ऑलरेडी कर लिए हैं। एग्जाम के पहले दिन आपने, एग्जाम के जस्ट लास्ट मंथ में आपने 15 days ऑडिट ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है। तो 1.5 days में आपको रिकॉल करने के लिए और टाइम कम लगेगा, एंड आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो वो 1.5 days का जो मैराथन है, वो मैं जनरिक नहीं बनाऊंगी कि सभी जो जिंदगी में कभी ऑडिट नहीं पढ़ा है वो भी 1.5 days में सब कुछ याद कर लेगा। नो नो नो, ये इल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो माय 1.5 days रिवीजन बिफोर द एग्जाम इज गोइंग टू बी मेनली फॉर द क्लास स्टूडेंट्स, बिकॉज यू हैव स्टडीड, यू हैव लर्न द टॉपिक सो मेनी टाइम्स कि 1.5 days में मैं आपको वापस वो FAQs सिखाने वाली हूँ, फ्रीक्वेंटली एज पास्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट जो या फिर प्रोबेबल क्वेश्चन जो कभी नहीं पूछे बट पूछे जा सकते हैं। सो माय क्लासेस गो, माय 1.5 days रिवीजन इज गोइंग टू बी अराउंड दैट। Are we clear on what is going to be 14 days recall, two space repetition, 1.5 days? मैं जस्ट हर एक चीज को समराइज करती हूँ, जिसके साथ में मैं एक और आपको वैल्यूड एडिशन प्रोवाइड करती हूँ। ये मेरे CA फाइनल के बच्चों ने मुझे रिकमेंड किया था, दैट आई डू इट फॉर यू गाइस एज वेल। ठीक है, मैंने ना CA फाइनल का सिलेबस मैंने आपको बताया है कि आपका जैसे 11 चैप्टर्स है, उनको 19 चैप्टर्स है। ठीक है, उनके पास ना 45+ से ज्यादा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, उसके बाद भी एक्स्ट्रा चैप्टर्स बहुत ज्यादा है पढ़ने के लिए। तो अभी क्या होता है, अब उतना सारा कैसे बच्चे रिकॉल करेंगे ना, तो उनको मैं क्या करती हूँ ना, उनके सेशन के लिए ना हर एक चैप्टर का, हर एक स्टैंडर्ड का ना एक छोटा सा फ्लो रहता है, छोटा सा फ्लो इन अ वॉइस नोट मैनर, मैंने सोचा है कि मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को भी। कब? अ नाइट बिफोर द डे, जो मेन डे, जैसे फॉर एग्जांपल 12 तारीख को अपनी एग्जाम है, अब सॉरी 12 तारीख को अपना सेशन है 3 hours का, 11 के नाइट को वॉट एवर टॉपिक्स आई एम गोइंग टू कवर, मैं उसका वॉइस नोट ऑलरेडी भेज देने वाली हूँ आपको इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, वेन एवर यू गेट टाइम आप सिर्फ उसको सुन लो। कितना टाइम जाएगा आपका? मैक्सिमम ½ an hour। उसमें मैं 2-3 टॉपिक का पूरा फ्लो वॉइस नोट के थ्रू आपको भेज देने वाली हूँ। ठीक है, आपका कंसेप्ट एटलीस्ट जब भी आओगे आप क्लास में, उसके पहले आप सुन के आओगे, तो कंसेप्ट आपको एक बार दिमाग में रहेगा कि क्या आप एक्सपेक्ट करते हो। फिर सपोज आप 12 अप्रैल को मेरे साथ में क्लास में आए, तो आपके पास में तो दिमाग में थोड़ा कंसेप्ट ऑलरेडी है, मैं उस कंसेप्ट को वापस फ्लो में लेकर के सिखा दूंगी। आर यू ऑल विथ मी ओवर हेयर गाइस? आई एम टॉकिंग अबाउट वन इंपॉर्टेंट डे, जाकि हम एक्चुअली 12 अप्रैल को करेंगे क्या हमारे डे 1 पे। आप वॉइस नोट के थ्रू थोड़ा नॉलेज पहले से गेन कर आए हो, मैं सेम कंसेप्ट को वापस उस फ्लो में उस क्लास में सिखाने वाली हूँ। ठीक है, 2 बार हो गया वो। नाउ
हम सिर्फ कंसेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आई पर्टिकुलरली डोंट बिलीव इन दिस थिंग कि आप सिर्फ कंसेप्ट पढ़ो, लास्ट मंथ में क्वेश्चन एंड आंसर देखने की कोई जरूरत नहीं है थियरी पेपर में, दैट डजेंट हेल्प। ऐसे पूरा फोकस करता है कि बच्चे को कंसेप्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के साथ में एग्जाम में प्रेजेंट करना आना चाहिए। सो इट विल बी अगेन अ री गो थ्रू ऑफ ऑल द क्वेश्चन जो आपने ऑलरेडी अभी जितने भी अभी तक सॉल्व किए हैं, जो भी नहीं सॉल्व किए, जो भी इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज है वो मैं क्लास में वापस लेने वाली हूँ आपके। ठीक है। हम राइटिंग नहीं करेंगे, हमारे पास रिटर्न है अभी वो आंसर्स, हमने उसकी मेहनत करके वो लिखे हुए आंसर्स, हम उसको वापस स्क्रिबलिंग करेंगे या तो फिर वापस रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एवरी सिंगल टॉपिक से। प्लस इससे एक और चीज क्या होती है, जो सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चंस करके जाएंगे तो दिक्कत क्या होगी, ऐसे ही अगर नए कंसेप्ट पूछेगा तो वो टेस्ट नहीं हो पाते अपने, राइट, क्योंकि लाइक टेस्ट हम नहीं कर पाएंगे उस चीज को क्योंकि हमने वो पढ़ा ही नहीं है। लेट्स नॉट डू दैट। लेट्स फाइंड आउट कि जो टॉपिक से कभी क्वेश्चन नहीं पूछे उसके किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और हम उसको कैसे आंसर करते हैं। सो आपका 12 अप्रैल को आपका कंसेप्ट 3 आवर्स के अंदर रिकॉल वापस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिकॉल, एंड न्यू प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या होंगे वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगी। इन योर सेम मटेरियल आप हर एक चीज मार्क करके रखोगे, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक में के अंदर, आपके कंसेप्ट बुक के अंदर। उसके बाद अब आपका एक्सपेक्टेशन होगा कि मैम वो 3 आवर्स क्लास कर लिया तो इज एवरीथिंग सफिशिएंट टू यू। सी ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने टाइम से मेरे साथ में रेगुलर 25 डेज राइटिंग प्रैक्टिस बैच में बैठ चुके हो, आपके दिमाग में कंसेप्ट है, और मैंने भी ये बहुत चीज क्लास बार क्लास में बार बार टेस्ट की है कि आपको चीजें आती हैं, काफी अच्छे से आती है। लाइक फॉर एग्जांपल आयुषी, आपने भी नोटिस किया होगा, जूही आपने भी नोटिस किया होगा कि यार वेन एवर आई आस्क यू क्वेश्चन आप कभी भी ऐसे ना ब्लैंक नहीं बैठते हो। उसका रीजन है दैट यू हैव ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड अ गुड ऑडिट नॉलेज। ठीक है। सो आफ्टर 12 अप्रैल, अगर 12 अप्रैल का जो टॉपिक्स हमने किए हैं उसके उसको आपको रिवाइज करना है, तो यू विल ओनली गो थ्रू द ट्रिकी क्वेश्चंस जो आपको लगे कि यार आपको क्लास में शायद थोड़ा ऐसा लगा कि यार शायद आपको देखना पड़ सकता है। आप पूरा का पूरा वॉइस नोट वापस सुनो, पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग वापस देखो, पूरे के पूरे क्वेश्चंस वापस गो थ्रू करो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। वो अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। सो ओनली द कंसेप्ट दैट यू फील इज ट्रिकी आपको देखना है, तो आप सिर्फ वो देखोगे। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड कि हमारा स्पेस रिपीटेशन ऑलरेडी अपने प्लानर में 2 दिन प्लान्ड है, एक 6 आवर्स का, एक 8 आवर्स का सेशन है। ठीक है। वो 2 अलग अलग डेज पे प्लान है, आई थिंक एक 18 या 19 अप्रैल के आसपास प्लान है और एक 27 से 28 अप्रैल के आसपास प्लान है। हम वापस रिवाइज कर लेंगे, एंड आई थिंक ऑन 29 अप्रैल वी हैव योर मॉक टेस्ट शेड्यूल। ठीक है। जहां तक हमने अभी तक पता लगाया था, आप में मोस्टली सब ग्रुप 2 वाले ही बच्चे हैं जो उस दिन मैंने वोट लिया था उसके हिसाब से, तो आप 29 अप्रैल को ऑडिट का पेपर लिख सकते हो। डन। सो दिस इज ऑल। मैंने मैंने इसमें ना ऑनेस्टली कुछ फैंसी ऐड नहीं किया है, मतलब जस्ट बिकॉज आई वांट यू गाइज टू कम इन द क्लास, मैंने इसमें ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं बताया कि इस बार हम ये नया करेंगे वो नया करेंगे, नहीं। हम एकदम बेसिक करेंगे कि नॉलेज एक्यूरेटली रिटेन कैसे कर पाए एग्जाम हॉल तक। वहां जाने के बाद नहीं लगे कि यार ये ऑडिट स्ट्रैटेजी के कि क्या फैक्टर्स होते हैं हमको याद नहीं आ रहे। नो, वी शुड बी एबल, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी, हमको 4 पॉइंट वो 5 पॉइंट याद आने ही चाहिए एज इट इज एक्यूरेटली। ठीक है। उसके हिसाब से मैंने बोला कि वॉइस नोट मेरे साइड से एक रात पहले वो एग्जाम वो दिन लाइक नो जिस भी 3 आवर्स का सेशन होने के एक रात पहले मेरी तरफ से वॉइस नोट आपको ग्रुप पे जाने चाहिए, वो मैं इंश्योर करूंगी कि मुझे भेजना ही है। जिस दिन हम रिवीजन के लिए बैठेंगे सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, हम कंसेप्ट को वापस गो थ्रू करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को वापस मेमोराइज करेंगे, न्यू प्रोबेबल प्रोबेबल क्वेश्चंस को हम वापस एक बार टॉपिक देखेंगे कि ये क्वेश्चन कभी पूछे नहीं है, पूछ सकते हैं, मेमोराइज कर लेंगे उसको। डन। यू विल बी पार्टिसिपेटिव, क्लास वैसे भी जूम पे होने वाली है, एंड यू नो दैट यू कैन ऑलवेज पार्टिसिपेट इन द क्लास। देन उसके बाद में आफ्टर दैट इफ यू वांट टू रिवाइज यू विल ओनली रिवाइज द ट्रिकी पोर्शन, आप वापस पूरा कंसेप्ट नहीं लेके बैठोगे, आप वो टाइम डेडिकेट करोगे आपके अदर सब्जेक्ट करने के लिए। स्पेस रिपीटेशन से मुझे लगता है, मैंने मेरे लाइफ में ऐसे ही देखा है कि जब तक मैंने रिपीटेशंस अवॉइड किए हैं ना, रिविजन्स अवॉइड किए हैं, मुझे बहुत दिक्कत आती थी एग्जाम में रिकॉल करने के लिए। वी हैव टू डू इट, वी मस्ट डू इट, इसके लिए वो डेडिकेटेड डेज है कि 6 घंटे 8 घंटे करना ही है अपने को। एंड लास्ट में 29 अप्रैल मॉक दे देंगे, हम सबको कंफर्ट आ जाएगा कि वेयर डू वी एक्चुअली स्टैंड। आर वी ऑल ओके गाइज विद दिस प्लान? एनी डाउट्स दैट यू मे हैव?
तो केस बेस्ड एमसीक्यू है वो, मतलब हम खुद ही कर ले फिर, या मतलब क्लास केस में? नहीं, एमसी केस बेस्ड एमसीक्यूज कैसे रहेंगे ना, वो मैं आपको ना उसके सेपरेट वीडियोस, जो भी मतलब जो भी अपने पास कुछ 30-35 क्वेश्चंस का बुकलेट है पूरा, ठीक है, वो क्वेश्चंस का बुकलेट के ऊपर ना मैं वीडियोस बना करके आई विल पुट इट ऑन यूट्यूब। सिर्फ देख लो उसको खाली, क्योंकि आपका ऑलरेडी कंसेप्ट इतना डिटेल लाइन बाय लाइन होके चला गया है ना अभी, कि आपको वो एमसीक्यू करने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। वो बैंक ऑडिट से आने तो, स्पेशल एंटिटी से किसी से भी आने तो, वो आपको बनेंगे। लेकिन आई विल पुट आईसीआई के बुकलेट जो भी है ना, वो सब मैं ऑलरेडी डाल करके रखूंगी उस पे, ठीक है, यूट्यूब पे। क्योंकि अभी एग्जाम के लिए थोड़ा टाइम है, जब मन करेगा उठा करके देख लो उस टाइम पे कि यार अभी बाकी थोड़ा कॉस्टिंग पढ़ के बोर हो गया, लेट मी जस्ट वॉच दिस वीडियो। 10 से 15 मिनट में एक एमसीक्यू, लाइक एक केस स्टडी 5 से 7 मिनट में मैक्सिमम सॉल्व हो जाता है। विल यू विल डू दैट वे, डन। तो वो भी मैम, कवरेज हो जाएगा। हाँ बोलो ना। मैम जैसे कुछ टॉपिक है जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, हाँ, तो उसका सेशन अटेंड करना थोड़ा जरूरी है, नहीं राइट? बिल्कुल भी नहीं। सो ये चीज मैंने सीए फाइनल वाले बच्चों को भी बोला है कि लेट्स नॉट फूल अवर सेल्स। ये हमारी बहुत, हमको ऐसा ना फियर, बहुत फोमो भी होता है, होने लगता है लाइफ में कि अरे यार सब लोग लाइफ में वो बैठ रहे हैं सेशन में, हम नहीं बैठ रहे। मैंने सीए फाइनल वाले बच्चों को भी यही बोला है कि मैंने ना, और अब मैं आपको भी बोलती हूँ, मैंने ना आपको एक एक आंसर ऐसे बच्चों की तरह याद करवा के लिखवाया है, कंसेप्ट भी बताया, समझाया उसके साथ में। वो भले ही आपका एसएम में हो, वो ऑडिट में भी है। तो बहुत बार ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हमको ही हलवा लगने लगते हैं, बिकॉज आपने बहुत ज्यादा ही कर लिया है उस चीज को। सो लेट्स नॉट सिट ऑन दोज सेशंस, दोज डेज यू डोंट हैव टू कम। जैसे आपको मालूम है कि वो पर्टिकुलर चैप्टर आपका ऑलरेडी हो चुका है, आपने ऑलरेडी अच्छे से रिवाइज किया, या आपको आता ही है, आप क्यों बैठोगे उस दिन के सेशन पे? यूज दैट 3 hours फॉर समथिंग एल्स। So join me only on those days where you feel you need the repetition, you need the recalling, you need, अगर आप खुद बैठ रहे हो और आपको वो आंसर्स याद नहीं आ रहे क्वेश्चंस के सामने देख करके, आप वो सेशंस में ज्वाइन करो। सी, भीड़ देख के क्लास में किसी को भी अच्छा लगता है। इफ आई सी ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग विद द सेशन, मुझे तो अच्छा ही लगेगा ना, बिकॉज इफ आई पुट दोस थिंग ऑन यूट्यूब, वो इट लुक्स नाइस दैट ओ माई गॉड सो मेनी स्टूडेंट्स, बट इज इट रियली वर्थ फॉर यू? नो, बिकॉज आपको वो कंसेप्ट ऑलरेडी आता है। सो यू विल अवॉइड दोज डेज। आर बी क्लियर आयुषी एंड एवरीवन? ठीक है। आयुषी ने ही पूछा था ना वो क्वेश्चन? यस मैम। ओके, आर यू क्लियर ना? मुझे आप दिख नहीं रहे हो इसके लिए, सॉरी। यस मैम। ओके ठीक है। गाइस एनी मोर क्वेश्चंस? विवेक, विकास, रोनन? नो मैम, बस प्रैक्टिस करेंगे। गुड गुड। चलो, यू गाइस आर ऑलरेडी डूइंग ग्रेट। घनश्याम? घनश्याम इज नॉट इन द क्लास। अस्मिता? अच्छा, घनश्याम है। Excuse me, मैम। यस अस्मिता, बोलो ना। या मैम, द थिंग इज ना, मेरा जो थर्ड चैप्टर है जो अपना इंटरनल कंट्रोल वाला, दैट चैप्टर में थोड़ा होल्ड नहीं बैठा है अभी तक। उसके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स जो मुझे नहीं समझते, तो क्या आप ये वाले आने वाले लेक्चर्स में कवर करोगे वो? मैंने उसके ना प्लानर ऑलरेडी इंक्लूड किया है ना, यू हैव नॉट सीन द प्लानर। प्लानर नहीं देखा है क्या अभी एक बार भी? रुको मैं बताती नहीं हूँ आपको। मैम। हाँ। मैं प्लानर निकालती हूँ ना। देख, अपना ना बहुत स्टार्टिंग में ही वो चीजें कवर हो जाएंगी। ये 14 अप्रैल के आसपास अपना चैप्टर 3 होने वाला है। सॉरी, चैप्टर 3 है या चैप्टर 4 है? इट इज चैप्टर 3, राइट? ऐसे थ्री वन यस फाइव मैम। 320 330 उस दिन ही कवर कर लेंगे अपन, 14 अप्रैल। सो देख मैंने कैसे प्लान किया है, मैं आई विल ऑल्सो टेल यू एंड व्हाई मैंने कॉन्फिडेंटली इस पे 95 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू क्यों रखा है, इवन दो आई हैव एक्सक्लूडेड सर्टेन टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन माय 14 days प्लान। अगर आप डे 1 से जाओगे ना, तो डे 1 से अपने को मालूम है एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के क्वेश्चंस आने ही हैं। वो चाहे बेसिक्स ऑफ एथिक्स हो गया, SQC 1 हो गया, SA 220 हो गया, 210 हो गया, क्वेश्चंस आता ही आता है, अपने को करना ही है सबसे पहले, वो बहुत बेसिक है, ठीक है।
दूसरा नेचर, आपको मालूम है नेचर ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ ऑडिट, कितना भी इजी लगने दो आपको, आपको मालूम है क्वेश्चन आना है, और आना है तो अपने को एक्यूरेटली गेन करना है। चैप्टर 2, अच्छा तगड़ा क्वेश्चंस आता है इसमें, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम। हम बहुत हल्के से पढ़ के जाते हैं थिंकिंग कि अरे ये तो क्वेश्चन इजी है, आ जाएगा, बन जाएगा, नहीं बनता है। बच्चे बच्चे एटलीस्ट एंड में भूल जाते हैं कि ऑडिट प्लानिंग में कौन से पॉइंट थे, ऑडिट स्ट्रैटेजी में कौन सा पॉइंट था, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन कब लिखना है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट कब लिखना है, सब दिमाग से गायब होता है, वो नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर फोकस करेंगे। एंड डे 3 दैट इज योर 14 अप्रैल के जो शेड्यूल है ना, 14 अप्रैल के शेड्यूल में ही हम ऐसे 315, 320, 330 करेंगे। फिर आप देखोगे मैंने इसके साथ में डिजिटल ऑडिट भी लिया हुआ है, 14 अप्रैल को ही मैं डिजिटल ऑडिट के साथ में आईसी का, इंटरनल कंट्रोल का पूरा कंसेप्ट 315 के साथ में ही कवर करवा दूंगी। हो जाएगा ये आपका, ठीक है। चैप्टर 4 के जितने इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स कवर कर सकते हैं अपन, वो कवर करेंगे 15 एंड 16 अप्रैल के आसपास। हो सकता है जल्दी भी कवर हो जाए, क्योंकि वो स्टैंडर्ड थोड़े अच्छे से किए हुए रहते हैं, बच्चे थोड़ा फोकस करते हैं चैप्टर 4 के ऊपर। नहीं भी किया होगा, हम फ्लो के साथ में जाएंगे, क्लास का कैसा चल रहा है, और जैसे ही वो हो जाएगा एटलीस्ट विल ट्राई करेंगे कि 17 अप्रैल को अपना एक 6 आवर्स का स्पेस रिपीटेशन होना चाहिए, ठीक है। इस दिन मैंने फाइनल वाले क्लास को छुट्टी दी हुई है, तो मैं आपका ही मैक्सिमम सेशन लेने वाली हूँ कि 6 to 8 आवर्स में मैक्सिमम पूरा रिपीट करके अपन फर्स्ट ऑफ द पोर्शन, मतलब आप ये मान करके चलो 8, 12, 12 + 8 20, 20 + 32, एटलीस्ट 30 मार्क्स का मिनिमम मिनिमम कवरेज आपका 17 अप्रैल तक थोड़ा पक्का हो जाएगा, ठीक है। फिर कम्स अपना चैप्टर 5 हम लेने वाले हैं कब, 18 अप्रैल को चालू करेंगे, 18, 19 को एक्चुअली सीए फाइनल। हाँ, जिस दिन आपको गैप दिख रहा है ना यहाँ पर, उस दिन समझ जाना कि सीए फाइनल का स्पेस्ड रिपीटेशन है। जिस दिन आपका स्पेस्ड रिपीटेशन का टाइम ज्यादा है, मतलब वहां पर छुट्टी है, वैसा मैंने प्लान किया हुआ है, क्योंकि दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए फॉर द रिपीटेशन, स्पेस्ड रिपीटेशन। तो 18 से लेकर के 20, 21, मतलब मेरा ये मानना है कि 21 अप्रैल तक आपका चैप्टर 5 के ऊपर कंफर्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर ये होने के बाद में अपन चैप्टर 7 वापस लेंगे, चैप्टर 6, चैप्टर 5 हो गया साथ में, फिर उसके बाद में चैप्टर 7 ले लेंगे, जो कि आपका 22 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। आप देखो ना, ऑडिट रिपोर्ट को छोड़ करके बाकी सारे आपके स्टैंडर्ड से निपट चुके हैं अभी तक यहाँ पर आते आते। 23 अप्रैल हमने, और अच्छा गुड पार्ट क्या है, हमने जैसे क्लास में ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी इतने अच्छे से किया है, ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट के साथ में किया है, तो अब जब आप उस क्लास में क्वेश्चंस देखोगे, कंसेप्ट देखोगे वापस, तो आपको लगेगा कि यार हाँ, सब रिकॉल हो रहा है बराबर से। चैप्टर 9 जो मैंने इसमें इंक्लूड करके रखा है कि यार चैप्टर 9 के देयर आर सर्टेन टॉपिक, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, लोकल ऑडिट हो गया, एनपीओज हो गया, ट्रस्ट सोसाइटीज वाला टॉपिक है, पार्टनरशिप फॉर्म, एजुकेशनल, ये टॉपिक तो मैं क्लास में लेने ही वाली हूँ 26 अप्रैल तक। 27 अप्रैल तक मेरा टारगेट है कि उसमें से काफी सारे टॉपिक, जो हो सकता है कुछ टॉपिक मैंने नीचे वाले पोर्शन पे रखे कि आप ये सेल्फ करोगे, वो भी आई इंक्लूड ओवर दे, और मैं करवा दूंगी। एंड ऑडिट ऑफ बैंक मैंने आईसीआई को जितना टेस्ट किया हमने लास्ट फ्यू अटेम्प्ट से, हम वी कैन नॉट मेक दैट मिस्टेक ऑफ नॉट डूइंग इट। एंड मेरे को ऐसा लगता है ना, इतना करने के बाद में आई कैन श्योरली से कि आपको 95+ मार्क्स तक का एक अच्छा कवरेज आपका ये हो जाएगा, लाइक 29 अप्रैल हमारे मॉक टेस्ट लिखने के टाइम तक, ठीक है। वर्क्स दिस प्लानर मैंने चैप्टर Yes. आगे पीछे नहीं किए हैं, उसका रीजन ये है कि फ्लो में ही पढ़ना चाहिए, जर्नी ऑफ एन ऑडिटर। आगे पीछे वेटेज के हिसाब से आगे कर लो तो फिर वो दिमाग में भी पूरा मेस होता है, उसके हिसाब से कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ रहे हैं बाद में पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस में पढ़ते हैं, हो जाएगा इतना अच्छे से। डन। एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दिस गाइस? चलो चालू करें अपना रेगुलर सेशन। प्रियंका, आर यू हियर? Yes, ma'am. We missed you on day 1 of bank audit. Did you Yes, happen to ma'am. complete that Yes, session? ma'am, I did. Oh, I okay. did. Okay, cool. How was it though? The first session? Yeah. How was the session though, bank audit का? Oh, it was good. Good. चलो अच्छा है।